Gracious, loving Heavenly Father, we thank you and praise you for this wonderful day you have added to our life. It is a perfect gift for us to live for you, and you have brought us together as a church to be your beloved ones, gathered in your presence with thankfulness for the night of rest and recuperating us and strengthening us for a new day to live for you. And we thank you, Lord, all these years and months and days and hours that we have spent in this world. You have been so faithful to us and carrying us as if the loving father, an ailing child, or a child that needs comfort and consolation and peace. We thank you, Father. Every morning you add to us your mercies, very new. And yesterday's mercy and yesterday's grace is not sufficient for us. We thank you. All these gifts are given to us that we may live happily as well as heartily, that we may be your precious children and spending time worth in this world as much as you give to us. So much so we be your portion, and you are our portion. You are our strength. Many times we are foolish, many times we are weak, many times we are afraid of things that are happening around us, the news that we hear, and the problems that mount up every day, scorching us with difficulties and pains and sorrows. We know that our God is sufficient to keep ourselves to be gloriously living one day at a time with you, so that you can have your glory through us, shining through us as moon shines the sun's light. Yes, Lord, your face will be turning to us to give us peace, your word says, Lord. And also your face will be shining on us and making us to enjoy your grace and also all the blessings that are there in you. You are pouring in from your storehouse for the church to live, to individuals and the families. Those who trust you will have much easier time than others. We thank you, Father. Thank you, Lord, for gathering us together for the day of prayer with thy children, and with that understanding that you are there to hear all our prayers and accept all our worship, and all the praises belongs to you. We thank you, Father. We pray for thy servant breaking the bread of life for us, guidance for prayer today, that we may be praying according to your will and in the Spirit of God, with the Spirit of Christ that is very much we need today in this world to live a victorious life. We pray that thy servant be blessed with thy word. We pray in our singing, in our prayers, help us to glorify you, praise and worship you, Lord, worthily, because you are the only one who is worthy of it. We pray for all our dear ones, all the families of Borivali Church, and we especially commend our sister churches in Palghar, Boisar, and Naigaon, and also Bombay and Maharashtra and in India. Dear Lord, the world over, you have gathered a worshipping group. We thank you, Father. We think of the ailing ones, the sick ones, and those who need your special touch of encouragement. Strengthen them, Lord, in thee, in thy strength, we will be strengthened. In your blessing, we will be blessed. That is your promise for us, Lord. We thank you. All our patriarchs and all our fellow saints, all these days you have been so carefully looking after our affairs. We thank you. Keeping all these things into your holy hands, the prayer is made in and through the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. आमीन। Amen. Amen. आइए हम लोग स्तुति गाएंगे।
सॉन्ग नंबर हिंदी में 160 है, तेलुगु में 216। उसका केवल पहला, दूसरा और चौथा, सातवां, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड लास्ट।
आइए हम लोग प्रार्थना में जाने से पहले एक वचन की बात को हम पढ़ेंगे। मत्ती के सुसमाचार उसका 18 अध्याय। मत्ती का किताब उसका 18 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 18 अध्याय उसका 18, 19 और 20 महीने पढ़ता हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खोलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। परमेश्वर वचन पढ़े हुए में आशीष करे और हम सबको प्रार्थना कर तैयार करें। छोटी सी हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी विश्वास का परमेश्वर, एक बार फिर सवेरे के समय में मंडली के नाई मिलते हुए प्रभु जी हमें ऑनलाइन जूम में पिता परमेश्वर प्रार्थना इकट्ठा होने के लिए आपने सहायता किया। रात भर के जीवन में आपने हमें अच्छी नींद दिया, थकावट को दूर किया प्रभु जी, और आपके अनुग्रह हुआ हमारे जीवन में प्रभु जी। मंडली के समय के अनुसार ऐसा प्रभु जी हम प्रार्थना में इकट्ठा हो सके, इसलिए आभारी हैं पिता प्रभु जी। और वचन के भाग को हमने पढ़ा है प्रभु जी। प्रार्थना में जाने से पहले आपके बहुमूल्य वचन के द्वारा हमसे बातें करें और हमें प्रार्थना के लिए प्रोत्साहन करे प्रभु जी। जिस बोझ के साथ में हम प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, उस बोझ को प्रभु लेते हुए बड़ी बोझ के साथ में एक मन होते हुए प्रार्थना करने अगुवाई को चाहते प्रभु जी। मैं तुझ को भी एक बार फिर प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हुए सारी महिमा आपको देते हुए हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। यहाँ पर इस बात को हम जानते हैं कि मत्ती की किताब में प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के बारे में यहाँ पर कहा है कि प्रार्थना हमारे लिए एक अधिकार है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये प्रार्थना हमारे लिए का एक हथियार भी है, जो इस बुरे संसार के अंदर आज हम जीवन बिता रहे हैं। और तमाम प्रकार के आज चारों तरफ से हम वातावरण को हम देखते हैं, आज ठीक नहीं है। आज हर जगह में अशांति है, गड़बड़ी है, समस्या है, तकलीफें हैं। और खास करके विश्वासियों के जीवन में या विश्वासियों के परिवार के अंदर और आज विश्वासियों के लिए एक बड़ा चुनौती का भरा हुआ आज हमारे सामने है। और ऐसी चुनौती में आज हमारे कितने ऐसे भाई बहन हैं जो प्रभु के जन हैं, जो आज सतावट में है, तकलीफ में है, कठिनाई में है, और कितने ऐसे सतावट के अंदर होने के द्वारा आज जेल में बंद हैं। हमारा भाई किसान फिलिप संडे को बता रहे थे कि किस तरह यूपी के अंदर किस तरह के आज वहां पर प्रभु के जो नाम के लिए एक 18 महीने का बच्चा भी आज जेल में बंद है। तो ऐसे परिस्थिति के अंदर हमारे लिए, हम विश्वासियों के लिए एकमात्र हथियार जो है या एकमात्र साधन जो है वो है प्रार्थना। और प्रार्थना के द्वारा ही आज हम देखते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु हमारे जीवन में बड़ा बड़ा काम को भी करते हैं। और प्रार्थना के उत्तर के द्वारा आज हम जो जीवित हैं तो संसार में, इस बुरे संसार के अंदर, तो यह है मंडली की प्रार्थना, विश्वासियों के प्रार्थना, जहां पर हम करने के द्वारा आज परमेश्वर आज भी संसार में अपना कार्य को करते हैं। और समय समय के अंदर परमेश्वर अलग अलग स्थिति को ला के हमारे साथ खड़ा करता है ताकि हम और भी प्रार्थना में लवलीन रहे। यही हमारा प्रभु चाहता है। लेकिन प्रार्थना में जाने से पहले 2 पहलुओं को यहाँ पर हम देखते हैं। प्रार्थना करने से पहले या प्रार्थना में जाने से पहले 2 पहलुओं का यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए, हमारी प्रार्थना कैसा होना चाहिए। पहला यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है वचन 18 के अंदर 19 के अंदर, मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है तुम्हारे लिए हो जाएगी। पहली बात है हमारे जीवन में, आपके जीवन में हमें क्या करना है कि एक मन होके हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। यदि आज हमारे मन के अंदर अगर हमारे जीवन में अगर एकता नहीं है, अगर हमारी प्रार्थना में एकता नहीं है, तो हमारी प्रार्थना, जहां तक हमारा विश्वास है कि हमारा प्रार्थना प्रभु के पास में नहीं पहुंचता है। पहली बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि एक मन होकर हमें प्रार्थना करना है। यद्यपि हम आज ऑनलाइन में जुटे हुए हैं,
हाँ, आज मैं यहाँ पर उमरोली में हमारे भाइयों के साथ में यहाँ पर जुटा हूँ, हमारे यहाँ पर, आप बॉम्बे में अलग अलग, लेकिन फिर भी परमेश्वर ये चाहता है कि हम एक मन होकर हमें प्रार्थना करना है। इसलिए एक मन के बारे में 2 वचन में पढ़ना चाहता हूँ मैं। जोशुआ की किताब 9 अध्याय के अंदर, जोशुआ की किताब 9 अध्याय के अंदर, द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 9 वर्स 2, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है। जोशुआ, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 9 वर्स 2 के अंदर लिखा हुआ है, वे एक मन होकर यहोशू और इजरायलियों से लड़ने को वहां पर इकट्ठे हो गए। कौन है ये लोग? है ये गिबोनी लोग हैं, ये हमारे विरोधी है, ये इजराइल का विरोधी है, वो इजराइल का दुश्मन है वो। आज दुश्मन के अंदर भी आज एकता है, आज दुश्मन के अंदर भी एक मन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह गिबोनी यहाँ पर यह सुनकर, वचन 9 अध्याय के अंदर एक पद में पर कहता है, यह सुनकर हित्ती, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिप्पी, युबूसी, जितने राजा यर्दन के इस पहाड़ी देश में, नीचे के देश में और लबनोन के सामने के महासागर तट पर रहते थे, वे एक मन होकर यहोशू इजरायलियों से लड़ने को इकट्ठा हो गए। हमारा दुश्मन, हमारा विरोधी, हमारा आज जो शत्रु भी इकट्ठा होकर एक बंद होकर लड़ने को ले आते हैं। लेकिन आज हम लड़ाई क्यों हारते हैं? आज हमारे हरावा जीवन क्यों है? आज क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारे बीच में एकता नहीं है, हमारे जीवन में, हमारे परिवार के अंदर एकता नहीं है। हम तो बोलते तो हैं हम मंडली में हैं, हम बोलते तो हम विश्वासी हैं, हम बोलते तो है कि हम प्रभु के जन हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक हम और आप इकट्ठा होते हैं, जब हमारे मन के अंदर एक बनता नहीं है, तो हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। यदि आज हम इकट्ठा होते होंगे, आज मंडली के अंदर, कलीसिया के अंदर, घर में इकट्ठा होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बीच में अनेकता है, हमारे बीच में मतभेद है, कहीं ना कहीं हमारे बीच के अंदर कई प्रकार की बातें हैं, इसलिए हम एक मन होकर हमारी प्रार्थना नहीं होता है। हम जानते हैं कि प्रेरितों के कर्म के अंदर जब लोग एक मन होकर प्रार्थना किया, वहां भूकंप आया। जब लोगों ने एक मन होकर प्रार्थना किया, वहां पर भूकंप होने के द्वारा उनकी जंजीरें टूट गई है। कैसा टूट गई है? क्योंकि उनकी प्रार्थना एक मन का था। इसीलिए पहला बात प्रभु यीशु मसीह कहता है कि एक मन होकर हमारे हमारे प्रभु के सामने हमको आना है और हमें प्रार्थना करना है। दूसरा मैं पढ़ता हूं आपको, जपने की किताब 3 अध्याय उसका 9 वचन, बुक ऑफ सपने की किताब उसका 3 अध्याय, वहां पर हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि इंग्लिश में मुझे लगता नहीं ऐसा लिखा नहीं हुआ है इंग्लिश के अंदर, लेकिन हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है कि कंधे में कंधा मिलाकर हमें आना है। ये कितनी बड़ी बात है हम विश्वासियों के लिए। आज कंधे में कंधे मिलाकर आज हमको क्या करना है? प्रभु के काम हमको करना है, प्रार्थना में आना है। 3 अध्याय बुक ऑफ जपनिया की किताब 3 अध्याय उसका 9 वचन, जपनिया की किताब 3 का 9, उस समय मैं देश देश के लोगों में से एक नई और शुद्ध भाषा बुलाऊंगा, वे सब के सब यहोवा के से प्रार्थना करे, वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करे और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करे। कितनी बड़ी बात है। एक सपन्य भविष्यवक्ता यहाँ पर कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि हम एक मन खाली नहीं है, लेकिन कंधे से कंधा मिलाकर हमें प्रभु का सेवा करना है। कंधे से कंधा मिलाकर हमें प्रभु का काम करना है, कंधे से कंधा मिलाकर हम प्रभु से प्रार्थना करना है। ये बड़ी बात है हमारे जीवन के अंदर। आज हमारी प्रार्थना इतना कमजोर क्यों है? आज हमारी प्रार्थना में इतना 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 शक्ति, इतना सामर्थ क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात में हम चूक रहे हैं। आज हमारे बीच में एकता नहीं, हमारे बीच में एकपन नहीं है, इसीलिए आज हमारे प्रार्थना में वो सामर्थ नहीं है जो सामर्थ पहले के प्रार्थना में था, है ना। इसीलिए आज हमारे जीवन में सबसे पहली बात है, प्रार्थना का पहला पहलू है कि आज हमारे एक मन होकर हमें प्रार्थना करना है, एक मन होकर प्रभु के सामने आना है, तभी हमारी प्रार्थना प्रभु सुनता है। ये एक मन होने का फायदा क्या है? देखिए, हम जब एक होके हम जब प्रभु के चरण पे आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, न केवल प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम एक मन होकर हम बैठते हैं ना, हमारे परिवार के अंदर, मंडली के अंदर, उसका फायदा क्या है? देखिए, द बुक ऑफ जोब, अय्यूब की किताब 41 चैप्टर, द बुक ऑफ जोब 41 चैप्टर, हम जब एक मन होकर आते हैं प्रभु के चरण में, या एक मन होकर हम रहते हैं, तो उसका फायदा क्या है, उसका परिणाम क्या है, उसका लाभ क्या है? यहाँ पर देखिए, द बुक ऑफ जोब
41 चैप्टर 41 चैप्टर उसका हम पढ़ेंगे 16 और 17। हिंदी में पढ़ता हूं मैं यहाँ पर 16-17। द बुक ऑफ जॉब 41 चैप्टर वर्स 16 एंड 17। वे एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि उसमें उनमें वायु भी नहीं घुस सकते। देखिए, ये परमेश्वर अय्यूब से बातें करते हुए यहाँ पर मगरमच्छ के बारे में यहाँ पर उदाहरण देता है कि देखो, मगरमच्छ का उसका जो बाहरी उसका भाग है, उसका बाहरी चमड़े का भाग है, वहां पर कैसा करते हैं, यहाँ पर वे एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं, उनमें वायु भी, एक हवा भी नहीं घुसता है। परमेश्वर आज मनुष्य को, एक जानवर को, एक लिप्टन बोलता है यहाँ पर, लिप्टन लिखा हुआ वहां पर, मगरमच्छ के एक एग्जाम्पल देकर कहता है, उसकी बाहरी चमड़े का जो उसका छिलका जो है वो इतना सटे हुए हैं, इतना मेले हुए हैं। वो कहता, प्रभु कहता है कि उस मगरमच्छ की चमड़े का जो छिलका इतना सटे हुए आपस के अंदर, इतना मेले हुए आपस के अंदर, उसके अंदर से वायु भी नहीं घुसता है। देखिए, आज हमारा जीवन ऐसा है कि आज हमें अपने आप को जांचना है, क्या मेरा जीवन ऐसा है आज? क्या हम ऐसे इकट्ठा है, हम ऐसे एक मन के हैं? हमारे खिलाफ में आने वाले एक वायु भी, एक हवा भी घुसना नहीं चाहिए। ये एकता, ये एक मन आज परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है ना। आगे कहता है वचन 17 में, वे आपस में ऐसे मिले हुए हैं और ऐसे सटे हुए हैं, अलग अलग नहीं हो सकते। कितना बड़ी बात आज सब्र के समय में वचन यहाँ पर कहता है कि एक लिप्टियन, एक मगरमच्छ के दृष्टांत दे कहता है कि पहली बात, उनके छिलके एक दूसरे से पूरा मिले हुए हैं और उसके भीतर से वायु भी प्रवेश नहीं करता। वायु क्या है? वायु को आज ऐसी दुनिया में कोई ऐसा शक्ति नहीं है, ऐसा कोई इंसान ने कोई ऐसा कोई इन्वेंट कोई बनाया नहीं है कि वायु को रोक रखे है, क्योंकि वायु कहीं से भी घुसता है। इस बात को हम जानते हैं कि ये वायु जब बंद होता है तो मनुष्य मर जाता है, सब जीवित प्राणी मरता है बिना हवा के द्वारा। ऐसा हवा जो है उसको रोकने के लिए आज कोई भी ऐसे आविष्कार नहीं किया गया इंसान ने। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है कि उस मगरमच्छ के छिलके से इतना सटे हुए हैं कि उसके अंदर वायु भी नहीं घुसता है, हवा भी नहीं घुसता है, और वो कभी अलग होता ही नहीं है। ऐसा एकता, ऐसा एक मन परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। जब ऐसे एकता में बने हुए हम प्रार्थना करते हैं तो प्रियो, हमारी प्रार्थना के द्वारा आज भी भूकंप आ सकता है, आज भी प्रभु बड़ा बड़ा काम कर सकता है। ये पहला पहलू है प्रार्थना का। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि प्रार्थना करने कैसे करना है, एक मन होके हमें प्रार्थना करना है। दूसरी बात हम सबके बंद करेंगे। दूसरी बात, बुक ऑफ मरकुस की किताब, दूसरा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, दूसरा बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मरकुस की किताब 11 अध्याय के अंदर, यहाँ पर भी इस बात को हम जानते हैं। यहाँ पर क्या कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह 11 अध्याय के अंदर जब वहां पर यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद में जब बेथानिया के अंदर आते हैं, और बेथानिया में के अंदर आने के बाद में जब रात वो वहां पर रुकने के बाद में जब प्रभु यीशु मसीह सवेरे जब बेथानिया से निकलते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है 11 अध्याय के 12 वचन में, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 12, दूसरे दिन जब वे बेथानिया से निकले तो उसे भूख लगी। जब प्रभु यीशु मसीह रात में बेथानिया में रुकने के बाद सुबह निकला वहां से, तो वहां पर कहता है कि प्रभु को भूख लगी। वहां पर भूख लगने के बाद में कुछ पाने की आशा में 13 पद के अंदर प्रभु एक अंजीर के पेड़ में जाता है और वहां पर फल नहीं पाता है, और वहां पर कहता है कि प्रभु ने उसको क्या दिया, पत्तों को छोड़, उसको कुछ नहीं पाया। इसलिए प्रभु ने क्या कहा कि वचन 14 में, इस पर उसने कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। जब प्रभु यीशु मसीह अंजीर के पेड़ में गया, वहां पर उनको फल नहीं मिला। फल ना मिलने के बाद में प्रभु ने कहा कि आज के बाद तेरे में कोई भी फल तेरा फल नहीं खाएगा। ऐसा कहे कि प्रभु यीशु मसीह आगे निकलता है। आगे निकलने के बाद में बुक ऑफ मार्को की किताब 11 अध्याय उसका 20 वचन में, 20 वचन में, फिर और भोर को जब वे उधर से जाते हुए उन्होंने देखा कि अंजीर का पेड़ को जड़ से तक सूख गया था। अब अगले दिन जब भोर को जब उसी रास्ते से प्रभु यीशु मसीह चेले के साथ वापस आ रहा था, तो चेले ने देखा
जिस पेड़ को प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि आज की तरह फल नहीं लगे, कोई नहीं खाएगा, वो पेड़ जड़ से लेकर ऊपर तक पूरा वो सूख गया था, पूरा वो पेड़। इसमें चेले ने क्या कहा, देखिए वचन 21 में, पतरस को यह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। क्या कहा पतरस ने, देखो प्रभु, यह अंजीर का पेड़ को जो तूने कल कहा था कि फल न लगेगा, ये पेड़ पूरी तरह सूख गया है प्रभु, करके पतरस कहता है। तब यीशु ने क्या कहा, देखिए तब 22 पद में यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे, तो जो कहता हूं वो हो जाएगा, उसके लिए वही होगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी बात कहा चेले को, अरे तुम खाली इस पेड़ के बारे में कहते हो, जब तुम विश्वास करोगे, प्रतीति करोगे और प्रार्थना करोगे, ये केवल पेड़ ही नहीं, ये पहाड़ भी, ये समुद्र भी हट जा बोलेगा ना, वो हट जाएगा। ऐसा प्रार्थना में क्या है, सामर्थ्य है। ये सामर्थ्य तुम्हारे पास भी है। अगर तुम भी प्रतीति करके विश्वास करोगे, प्रार्थना करोगे, तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त है। शर्त क्या है, उसको हम पढ़ेंगे वचन 25, बुक ऑफ मार्क 11 चैप्टर 25। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई विरोध हो तो क्षमा करो। प्रार्थना का दूसरा पहलू, हमें क्षमा करना सीखना है प्रियो। अगर मेरे हृदय के अंदर किसी के प्रति कुछ बातें हैं, किसी के विरोध में कुछ बातें हैं, मन में खट्टा है, मेरा मन में उनके प्रति मन मुटाव है, मेरा मन में कुछ जलन है, क्रोध है, ईर्ष्या है, कपट है या खेद है, तो ऐसा मन को लेके हम जब प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। प्रभु ने स्पष्ट कहा यहाँ पर कि यदि तुम प्रार्थना करने खड़े होते हो, तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध है, तो हमारे मन के अंदर, दोस्तों के बारे में बात नहीं करता यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, तुम्हारे मन के अंदर, मेरे व्यक्तिगत तौर पर आज मुझे जांचना है, प्रार्थना करने से पहले मेरे मन के अंदर किसी के प्रति कोई प्रकार की भावना या विरोध या कोई प्रकार की अनबन या कोई प्रकार की कुछ बातें मेरे मन में होना नहीं चाहिए। और ऐसे हृदय को लेकर, ऐसे मन के अंदर कठोरता को लेकर, मन के अंदर अनमन को लेकर, मन के अंदर क्रोध को लेकर अगर हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। हमें क्षमा करना सीखना है। यदि मैं आज क्षमा नहीं करूंगा, तो निकल वचन 26 में लिखा है, यदि तुम क्षमा न करो, तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यदि आज हम प्रार्थना करने के लिए आए हुए हैं, प्रार्थना हमें करना है, तो पहली बात हमें एक मन होना चाहिए। जब एक मन होते हैं, ऐसा एक मन होना चाहिए, हमारे भीतर से हवा भी घुसना नहीं चाहिए। दूसरी बात है, हमारे मन के अंदर किसी के प्रति कोई विरोध नहीं होना चाहिए, मन मुटाव नहीं होना चाहिए, कोई दुख होना नहीं होना चाहिए, कोई प्रकार की बात नहीं होना चाहिए। अगर है तो पहला उनको क्षमा करना है, हमें क्षमा करना सीखना है। जब मैं ऐसा करता हूं, तो मेरी प्रार्थना प्रभु निश्चय सुनता है। इसलिए प्रभु हमको सहायता करे हमारे जीवन में। ये दो बातें हमने देखा, पहला एक मन, एकता के अंदर, और दूसरी बात है मेरे मन के अंदर किसी प्रकार की भावना कोई किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। दूसरों के बारे में नहीं कहता यहाँ पर, दूसरे मन में क्या हमको नहीं मालूम है, लेकिन मेरे मन के अंदर व्यक्तिगत तौर पर माई लाइफ, मेरे मन के अंदर हमें अपने को झांकना है कि मेरे मन के, हम दूसरे को झांकने के बजाय मुझे अपने झांकना है कि मेरे अंदर के क्या तो कुछ तो नहीं है किसी भाई के लिए, किसी बहन के प्रति। अगर ऐसा है तो पहले क्षमा करना है। क्षमा करके हमें फिर हम प्रार्थना करेंगे, तो हमारी प्रार्थना में वो सामर्थ प्रभु हमको देता है। इसीलिए आइए एक लास्ट वचन हम पढ़ के हम प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन की किताब, उसका 15 अध्याय, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन की किताब 15 अध्याय, उसका 8 वचन पढ़ के हम लोग प्रार्थना करेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 8, दुष्टों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों के प्रार्थना से प्रसन्न होता है। सीधा
कोई हमारे मन में टेढ़ा नहीं हुआ, सीधा मनुष्य जब प्रार्थना करता है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। प्रभु सहायता करे, हमारे जीवन में हमको एकपन दे, और हमारे मन के अंदर कोई विरोध है किसी के प्रति, पहले उनको क्षमा करें। उनको क्षमा करने के बाद में फिर हम जब प्रार्थना करेंगे तो सीधा मनुष्य के प्रार्थना हमारा प्रभु सुनता है। प्रभु इस पढ़े वचन को आशीष करे और उनको सहायता करे। ब्रदर Yes, brother. Praise the Lord. आइए हम प्रार्थना शुरू करेंगे जो परमेश्वर के वचन से जो 2 बातें हमें सिखाए गए हैं पवित्र आत्मा से। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 18, जो हम इस धरती में बांध देते हैं वो स्वर्ग में भी बांधा जाता है। और इसके लिए 2 शब्द हैं। एक तो हम एक मन और एक चित्त के साथ हम प्रार्थना करना चाहिए, और हमारा जीवन एक मन और एक चित्त के साथ रहना चाहिए। जैसा हमने देखा गिबियोनी लोग जोशुआ 9:2 में, जो हमारे शत्रु लोग हैं वो भी एक मन और एक चित्त में हमारे पास आए थे। और जफानिया 3:9 में भी कंधे के ऊपर कंधा मिलकर हम लोग आए थे, कंधे के ऊपर कंधे में मिलजुल के थे। और दूसरा विषय है कि हम कोई भी नो इल फीलिंग, नो गिल्ट फीलिंग, नथिंग एक दूसरे के बीच में। और अगर आप किसी के खिलाफ आपके मन में कुछ है, उनको आपके खिलाफ नहीं, अगर आपको किसी के विषय में, किसी के भाई के बारे में, किसी के विश्वासी के बारे में कुछ भी चिंतित विषय है, तो आपको जाके कहना है कि हे विश्वासी मुझे क्षमा करे। तो ये दूसरा शर्त है मार्क 11 अध्याय से। और आखिरी में हमने पढ़ा था प्रोवर्ब्स 15:8 से, द प्रेयर ऑफ द अपराइट इज एक्सेप्टेबल। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारा मन और हमारा हृदय शुद्ध रहे, और मन में कुछ रखना नहीं चाहिए। सब कुछ कबूल करते हुए एक मन और एक चित्त के साथ हम प्रार्थना में प्रवेश होना चाहिए, और फिर तब परमेश्वर हमारे लिए आश्चर्यचकित काम करेगा। और उस अंजीर के पेड़ की नाई हम फलवंत रहेंगे उनके लिए, और हम उपयोगी पात्र बनेंगे परमेश्वर के लिए। आइए हम प्रार्थना शुरू करेंगे। प्रार्थना कीजिए बोरीवली और पालगढ़ असेंबली के लिए, संडे मिनिस्ट्री के लिए, कल यूथ मीटिंग, सिस्टर्स मीटिंग के लिए, और